الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور
اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، تھوڑا سا بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 10 اکتوبر سن 2021 کو دوسری مرتبہ آپ حضرات کے اس علاقہ اڈا 94 کروڑ لال عیسن میں برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد افضل صاحب اور ان کے دیگر دوستوں کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین میرا اور آپ کا دین کے نام پر یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین تو زندوں والی کہہ دو آمین۔ میں دیکھ رہا تھا مفتی عبدالواحد صاحب بھی اسی لیے تھکی گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ آپ تھکے لگ رہے ہیں، اور تھکے ہوئے مجمع سے بولنا تو ایسے ہے جیسے قبرستان میں دعا پڑھنے والی بات۔ اس لیے میں آپ کا شروع کے 5-4 منٹ میں ٹیمپریچر چیک کروں گا، اگر تو آپ جاگ رہے ہوئے تو تھوڑی سی جاگتی جیتی گفتگو بھی کر دوں گا، مگر نہ ٹائم پاس کرنا ہمیں بھی آتا ہے۔ میرے دوستو، اشتہار پہ زیر عنوان تھا سیرت النبی و صحابہ کانفرنس۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ برس میں نے تمہیں اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرایا تھا، اور آج میرا دل چاہتا ہے اگر آپ جاگ پڑے تو میں آج آپ کو نبی کے یار جناب صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھاؤں۔ سبحان اللہ، زندہ والی سبحان اللہ۔ تھکنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم لمبے سفر کر کے آتے ہیں، روزانہ 2-3 جلسے کرتے ہیں، رات کو سونا نصیب نہیں ہوتا، بے وقت کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے پھولوں کی طرح چہک اور مہک کر آتے ہیں، اور آپ 5-10-20 کلومیٹر کا سفر کر کے ایسے تھکے لگے ہیں جیسے مدینے سے پیدا ہوئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں بازوق آدمی ہوں اور بازوق مجمع چاہتا ہوں، ہنستا مسکراتا آدمی ہوں، ہنستا مسکراتا مجمع چاہتا ہوں، زندہ دل انسان ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کام بولوں اور کام کروں۔ میری تقریر میں نہ لطیفے ہوتے ہیں، نہ چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔
उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी एक जज्बा छलक रहा है। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई है। जैसे आप डिमांड करते हैं ना कि मुकर्रर जब माइक पर आए तो हमारे दिल की गहराई में डूब जाए, हमारे सारे शौक पूरे कर दे, हमारी सारी फरमाइशें पूरी कर दे और ऐसी तकरीर करे कि बस मजा आ जाए। तो मुकर्रर भी चाहता है कि जब मैं स्टेज पे आऊं ऐसे चेहरे मुझे खिलते खिलाते नजर आए कि मुझे भी मजा आ जाए। एक दफा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरी आदत है कि मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा सरवर कौनैन साकी कौसर ताजदार मदीना फखरे दो आलम आमना के दुर्रे यतीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासआदत तय्यब व ताहिर अतर व मुताहर अरफा व आला बरतर व बाला नामे नामी और इसमें गरामी से करता हूँ। इसलिए जब स्टेज वाले बोल पड़े तो मजमा खुद ब खुद बोल जाए। हालांकि ये रोटी डबल खाते हैं, बोलते फिर भी नहीं। इसलिए कि खुद खालिक के कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ व समावात ने कहा कि मेरे पैगंबर, मेरे हबीब और लाडले महबूब और महजबीन हसीन और नाज़नीन पैगंबर, मेरा तुझसे ये वादा है, ये अहद व इकरार मीसाक व पैमान है कि सरजमीने कायनात के जिस खित्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा फजा खला के जिस झोंके पर, जिस दरख्त के पत्ते पर, जिस फूल की पत्ती पर, जिस पहाड़ के पत्थर पर, जिस पानी की लहर पर, जिस शबनम के कतरे पर, जिस परिंदे की उड़ान पर, जिस इंसान के दिलो दिमागो जुबान पर, जिस किताब के वरक पर, जिस कलम की नोक पर तेरा जिक्र आएगा, मैं रहमत की बारिशें बरसाऊंगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि उसी पैगंबर का जिक्र पाक करूं और उसी से बात का आगाज करूं ताकि अल्लाह मेरे और आपके दिलों पर भी अब्रे रहमत की रिमझिम बरसा दे। मेरे दोस्तों, कायनात के रब ने इस कुर्रे अर्ज पर पूरी तवज्जो चंद जुमले देना चाहूंगा। इस कुर्रे अर्ज पर लाखों अनवाओ अकसाम की मखलूकात को पैदा किया, फिर उन मखलूकात में जमीने आसमान, हवा फजा खला का निजाम, नबातात जमादात, दरिंद परिंद चरिंद, इंसान हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शी फरशी सूरज चांद सितारे सयारे नुजूम कवाकिब शम्स कमर हजर शजर बहर बर शामो सहर नूर बशर जन्नत हुर गिलमा मुख्तलिफ मखलूकात थी, लेकिन अल्लाह ने उन सारी कायनात की मखलूकात में से इंसान को चुनकर पूरी कायनात की मखलूकात का सरदार बना दिया। पूरी कायनात की मखलूकात का सरदार बना दिया। फिर कायनात के रब ने पूरी कायनात की मखलूकात में से जब इंसान को यानी बनी नोए इंसान को चुना तो फिर अल्लाह ने बनी नोए इंसान में भी खरबों की तादाद में इंसान पैदा किए। तो अल्लाह ने फिर उन सारे इंसानों में 1,24,000 अंबिया की जमात को चुनकर सारी कायनात के इंसानों का सरदार बना दिया। फिर 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ने 313 रसूलों को चुनकर उन 1,24,000 अंबिया का सरदार बना दिया। फिर उन 313 रसूलों में अल्लाह ने 10 उलुल अज़म अंबिया को चुनकर उन 313 रसूलों का भी सरदार बना दिया। फिर उन 10 उलुल अज़म रसूलों में से अल्लाह ने 4 साहिब किताब अंबिया और रसूल को चुनकर उन 10 का भी सरदार बना दिया। फिर उन 4 में
अल्लाह ने तेरे और मेरे पैगंबर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, ताजदार मदीना, फखरे दो आलम, आमना के दुर्रे यतीम, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा को चुनकर सारी कायनात के नबियों, पैगंबरों, रसूलों का सरदार बना दिया। बिल्कुल इसी अंदाज में हू बहू, रू बरू, सू बसू, सेम टू सेम अल्लाह ने जैसे पूरी कायनात में इंसानियत को चुना और फिर इंसानियत में अल्लाह ने जमात अंबिया को चुना, फिर जमात अंबिया में अल्लाह ने 313 रसूलों को चुना, फिर 313 रसूलों में अल्लाह ने 10 उलुल अज़म अंबिया को चुना, फिर 10 उलुल अज़म अंबिया में अल्लाह ने 4 साहिब किताब रसूलों को चुना, फिर 4 साहिब किताब रसूलों में जनाब अहमद मुस्तफा को चुना। बिल्कुल इसी तरह कायनात के रब ने सारी कायनात के नबियों की उम्मतों में भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफा को चुना, फिर उम्मत मोहम्मद मुस्तफा में भी अल्लाह ने 1,54,000 असहाबे मुस्तफा को चुना, फिर 1,54,000 असहाबे मुस्तफा में अल्लाह ने 313 असहाबे बदर को चुना, फिर 313 असहाबे बदर में अल्लाह ने 10 अशरा मुबशरा को चुना, फिर 10 अशरा मुबशरा में अल्लाह ने 4 खुलफाए राशिदीन को चुना, फिर उन 4 खुलफाए राशिदीन में यारे गारे पैगंबर, रफीक हिजरत, रफीक कौसर, रफीक जन्नत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को चुनकर नबी की पूरी उम्मत का सरदार बना। जिंदाबाद। अल्लाह। तुमने क्या समझा, सिर्फ मुकर्रर को पसीना पसीना करो? अगर ऐसे खस्सी नारे लगाने हैं तो फिर मौलवी को वही बुलाया। अब लगाओ मौलवी साहब नारा जरा। जिंदाबाद। 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 मेरे दोस्तों तवज्जो करना, मैं मजीद गड़बड़ कर दिया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। मैं मजीद उसको शॉर्टकट करते हुए उन्वान को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं दूसरे अंदाज में। ये मैंने पहला अंदाज बताया कि कायनात के रब ने जैसे अंबिया को चुना वैसे सहाबा को चुना, फिर जैसे अंबिया में रसूल को चुना वैसे 313 असहाबे बदर को चुना, फिर जैसे 313 रसूल में 10 उलुल अज़म अंबिया को चुना, वैसे जनाबे 313 असहाबे बदर में 10 अशरा मुबशरा को चुना, फिर जैसे 10 रसूल में 4 साहिब किताब रसूलों को चुना, वैसे अशरा मुबशरा में 4 खुलफाए राशिदीन को चुना, फिर जैसे 4 और साहिब किताब रसूल में आमना के दुर्रे यतीम को चुना, बिल्कुल वैसे 4 खुलफाए राशिदीन में अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को चुना। अब दूसरे अंदाज में मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने जब तौरात इंजील ज़बूर और कुरान का मुताला किया तो मैंने देखा कि कायनात के रब को हर 9 में 4 पसंद आए और उन 4 में एक सरदार पसंद आया। कायनात के रब ने जब मखलूकात पैदा की तो मखलूकात तो बहुत थी, लेकिन उन सारी मखलूकात में अल्लाह ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक मखलूक को अल्लाह ने इंसान कहा, एक को अल्लाह ने हैवान कहा, एक को अल्लाह ने जिन्नात कहा, एक को अल्लाह ने मलाइक कहा। फिर उन 4 मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को चुनकर सारी मखलूकात का सरदार बना दिया। फिर इंसानों के बाद अल्लाह ने मलाइक भी पैदा कर दिए, तो मलाइक भी अरबों और खरबों की तादाद में थे, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक फरिश्ते को अल्लाह ने जिब्रील अमीन कहा, एक को अल्लाह ने मीकाईल कहा, एक को अल्लाह ने इस्राईल कहा, एक को अल्लाह ने इसराफील कहा। फिर उन 4 फरिश्तों में जनाबे जिब्रील को चुनकर सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फिर कायनात के रब ने जब दुनिया में इंसान पैदा किए तो इंसानों के तबकात तो बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने उन सारे तबकात में
चार तबकों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक तबके को कुरान ने मिनन नबीयीन कहा, एक तबके कुरान ने मिनन सिद्दीकीन कहा, एक तबके को कुरान ने मिनन शुहदा कहा, एक तबके को कुरान ने मिनन सालिहीन कहा। फिर उन चार तबकों में अल्लाह ने अंबिया के तबके को चुनकर पूरी कायनात के तबकों का सरदार बना दिया। फिर इससे भी और आगे चल कायनात के रब ने दुनिया में किताबें भी नाज़िल कर दी। किताबें तो 123 थी, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी चार को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने तौरात कहा, एक को अल्लाह ने इंजील कहा, एक को अल्लाह ने ज़बूर कहा, एक को अल्लाह ने कुरान कहा। फिर उन चार किताबों में अल्लाह ने कुरान को चुनकर सारी किताबों का सरदार बना दिया। उससे भी और आगे चल कायनात के रब ने जब ये दुनिया बनाई तो दुनिया में दिन रात और महीने भी पैदा कर दिए। दिन तो साल के बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी चार दिनों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक दिन को अल्लाह ने यौम जुमा कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम अरफा कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम फितर कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम ज़ुहा कहा। फिर उन चार दिनों में अल्लाह ने यौम अरफा हज के दिन को चुनकर पूरे साल के दिनों का सरदार बना दिया। फिर दिनों के बाद अल्लाह ने रातें भी पैदा कर दी। रातें भी साल की बहुत, पर अल्लाह ने उनमें भी चार को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक रात को अल्लाह ने शबे कदर कहा, एक रात को अल्लाह ने शबे जायजा कहा, एक रात को अल्लाह ने शबे अरफा कहा, एक रात को अल्लाह ने शबे बरात कहा। फिर उन चार रातों में अल्लाह ने शबे कदर को चुनकर सारे साल की रातों का सरदार बना दिया। फिर रातों के बाद अल्लाह ने महीने भी पैदा कर दिए। महीने तो साल के 12, पर अल्लाह ने उनमें भी चार को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने मुहर्रम हराम कहा, एक को अल्लाह ने रजब मुरज्जब कहा, एक को अल्लाह ने शबान मुअज्जम कहा, एक को अल्लाह ने रमजान मुबारक कहा। फिर उन चार महीनों में अल्लाह ने रमजान को चुनकर सारे महीनों का सरदार बना दिया। इससे भी और आगे चल कायनात के रब ने दुनिया में अपने घर भी बनवाए। अल्लाह के घर को हर गली कूचों बाजारों सारा में, लेकिन अल्लाह ने उन घरों में भी चार घरों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक घर को अल्लाह ने बैतुल्लाह कहा, एक घर को अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस कहा, एक घर को अल्लाह ने मस्जिद नबवी कहा, एक घर को अल्लाह ने मस्जिद कुबा कहा। फिर उन चार घरों में अल्लाह ने बैतुल्लाह को चुनकर सारे घरों का सरदार बना दिया। कायनात के रब ने फिर दुनिया में इमाम भी पैदा किए। इमाम तो बड़े आए, मगर अल्लाह ने उन सारे इमामों में भी चार इमामों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा कहा, एक को अल्लाह ने इमाम मालिक कहा, एक को अल्लाह ने इमाम शाफी कहा, एक को अल्लाह ने अहमद इब्न हंबल कहा। लेकिन उन चार इमामों में तेरे और मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा को चुनकर इमामों का सरदार बना दिया। बिल्कुल इसी तरह कायनात के रब ने अपने नबी को सहाबा भी अता किए। सहाबा तो 1,54,000 थे, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी चार को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को सिद्दीक अकबर कहा, एक को फारूक आज़म कहा, एक को उस्मान गनी कहा, एक को अली हैदर कर्रार कहा। तो फिर उन चार सहाबा में अल्लाह ने यारे रात, रफीक मज़ार, रफीक हिजरत, तैयबे कायनात, ताहिरे कायनात, अतीके कायनात, अफीफे कायनात, हबीबे हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका के बाद अबू बकर को चुनकर नबी के सारे सहाबा का सरदार बना। अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत सिद्दीक अकबर, मुस्तफा के हमसफर। नारे के जवाब जोर से दे, मुस्तफा के हमसफर। ये जो पीछे बांग्लादेश वाले बैठे हैं, इनको रात को खाना नहीं मिला घर से या इधर से? कुछ मरीज टाइप लगते हैं मुझे, और मैं मरीजों से बात नहीं किया करता। जो थका हुआ वो उठ के घर चला जाए ना,
जो यहाँ बैठे हैं अल्लाह रसूल और सहाबा का जिक्र हो और तुम्हारी जान में जान ना हो, उधर कहते हो जान भी कुर्बान है। अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, खतीब यूरोप एशिया मौलाना यहया फासी साहब, नारे तकबीर। मैं कहा करता हूँ मेरे नारे नहीं, मेरा नाम याया है। पढ़े लिखे मौलवी से पूछना, याया का माना ही जिंदाबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए बड़े बड़े मुर्दाबाद हो गए मुझे मुर्दा करते करते। इसलिए अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है, इसलिए इनको जिंदा करो। ये जो रात के 12 साढ़े 12 बजे टिन हो गए, इनको जिंदा करो। तो जो है कह दो मलंगों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली। मेरे दोस्तों, अब तक मैंने आपका टेम्परेचर चेक किया, अब मैं मौजू शुरू करता हूँ। करो ये सारे गुंडे थके हुए, पूरी तवज्जो रहे। चलो आज मौजू शुरू करता हूँ, वाइंड अप फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। मैं कश्ती को जरा दरिया में उतार तो दूं, चलो एक लहर तो अबूर कर जाऊं। गुफ्तगू की इब्तदा, मौजू की इब्तदा मैं इस जुमले से करना चाहता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद बैठे हैं, मास्टर मुजफ्फर साहब, माशाल्लाह 1975-76 में मैं इनसे पढ़ता था मुजफ्फरगढ़ में। जब आप में से बहुत सारे यंग मैन अभी पैदा नहीं हुए थे, बल्कि अब्बू की शादी भी नहीं हुई थी। पूरी तवज्जो रहे, वो मेरे साथ बैठे हैं, उनकी दुआएं लेने के लिए मौजू को शुरू कर रहा हूँ। और शुरू इस जुमले से करना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो चाहूंगा। जो दुनिया में आकर, जो दो चार बोल पड़ो, जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे। पूरी तवज्जो करना, एक नया जुमला तुम्हारी नजर करने चला। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। सिर्फ जिंदा जिंदा मरीज ना बोले, सेहत मत बोले। मैं कब पूछा मेरे पास इसे कड़ो गई सेहत मत की अले दे दो। हुजूर की हदीस है, उलमा जानते हैं। हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह तरोताजा रख उसके चेहरे को जो मेरी बात लोगों तक पहुंचाए। रोजाना हम बात पहुंचा रहे हैं तो कैसे ना तरोताजा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप भी तरोताजा रहना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। पूरी तौर। और जो उस नबी की गवाही दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। अब यहाँ तक तो आपने बहुत दफा सुना होगा। मैं ज़ौक़ अब्बासी का एक और हीरा देना चाहता हूँ। सारे कहोगे तो फिर रिपीट करता हूँ ताकि सबक याद हो जाए। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। और जो उस नबी की गवाही दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। करो लाली संभालो, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर तक दूर तक इंजॉय करते रहोगे। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। जो उस नबी की गवाही दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। और जिसकी रब गवाही दे, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। और जिसकी रब गवाही दे, अल्लाह ने कहा था ना, कद समी अल्लाह, अल्लाह ने कहा था महबूब मैं गवाही देता हूँ, अबू बकर सच्चा है। सारे सहाबा सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक है अकबर। यही तो वजह है कि अकबर क्यों, हालांकि जिस सहाबी ने तस्दीक की सिद्दीक बन गया, मगर ये सिद्दीक अकबर क्यों बना? कई वजूहात हैं, मैं सारी बयान नहीं कर सकता, ना वक्त का तकाजा है, ना आप इतना बेदार हैं। लेकिन उनमें से एक वजह मैंने आपको बताई कि जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। जो नबी की गवाही दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। जिसकी रब गवाही दे, उसे सिद्दीक अकबर। अब आओ
उसी सिद्दीक का तारुफ मैं कुरान से शुरू करता हूँ। शुरू नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। शुरू कर रहा हूँ बात। कायनात के रब ने, काश आप जिंदा बैठे होते तो आज मेरा मूड था कि मैं बोलता। कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत ग्रेवी। कुरान में अल्लाह ने, तवज्जो मेरी तरफ, कुरान में बिठा उस टपी को मुलवाड़ी ये जुरत कर सकती है, वाकई उधर से थोड़े रहने की जुरत है। अगर मौलवी रानी नहीं चलो आपको तो कर दिया जी। कुरान में अल्लाह ने, और तो जान गयो इसे गाली दे रहा था, जान गयो। कुरान में अल्लाह ने अपने एक यार का जिक्र, जागो ताकि मैं जागने वाली गुफ्तगू। कुरान में अल्लाह ने अपने एक यार का, या शेख इधर देखो तो या शेख तबसरे तजजिए बाद में कल बट्टा ला भी है तस्वीर नहीं है सोनी छे दे गोश्त अल्लाह ने जगावण वास्ते की जो बेदरा तारी नेत्र का इधर एक लगे मुंडे दे डट्टे दियो। अल्लाह ने कुरान में अपने एक यार का जिक्र सुभान अल्लाह और कैसे किया, किन अल्फाज से किया, पूरी तवज्जो करना कारियत साहब, कैसे किया, किन अल्फाज से किया। फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। अब तवज्जो करना, इस बात को खोलना चाहता हूँ, इस गुलदस्ते के फूलों को तोड़ना चाहता हूँ, फूलों की पत्तियों को अलग करना चाहता हूँ, पत्तियों की महकों में से एक महक देना चाहता हूँ। अल्लाह ने अपने यार को सिद्दीक कहा, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। नबी और भी है, लेकिन सिद्दीक इब्राहीम को कहा, खलील इब्राहीम को कहा। अब अल्लाह ने अपने यार को नबी सिद्दीक कहा और हुजूर ने अपने यार को सिद्दीक कहा। आओ अब इन दोनों में मुमासलत तो देखें, मुताबिकत तो देखें, तदबीक तो देखें, वजह तमसील तो देखें कि वजह क्या है। अल्लाह ने भी अपने यार को सिद्दीक कह दिया, हुजूर ने भी अपने यार को सिद्दीक कह दिया, क्यों, वजह। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इब्राहीम कैफ़ा कुन्ता खलीला, तो अल्लाह का खलील कैसे बना। खलील यार को कहते हैं, अरबी में यार के लिए बहुत सारे लफ्ज हैं, खलील भी यार है, हबीब भी यार है, रफीक भी यार है, हाँ सदीक भी यार है, मुख्तलिफ अल्फाज है, लेकिन अल्लाह ने जो लफ्ज चुना ना वो लफ्ज सिद्दीक चुना और दूसरा लफ्ज खलील चुना। तो किसी ने पूछा, इब्राहीम कैफ़ा कुन्ता खलीला, इब्राहीम तुम अल्लाह के खलील कैसे बने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वज़लतु नफ्सी लिन्निरान व वलदी लिलकुरबान व बानी लिलसैफान व क़ल्बी लिर्रहमान नाम अना खलीलुर रहमान। मुझसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह का यार कैसे बना, खलील कैसे बना, सिद्दीक कैसे बना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे मत, जो जो मांगता गया मैं आंखें बंद करके देता गया। वज़लतु नफ्सी लिन्निरान, अल्लाह ने कहा जान दे, अल्लाह ने कहा जान दे, मैंने आग में पेश कर दिया, छलांग लगा। अल्लाह ने कहा माल दे, मैंने उसके नाम पे लुटा दिया। अल्लाह ने कहा बच्चा दे, मैंने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दी। अल्लाह ने कहा दिल दे, मैंने दिल उसके हवाले कर दिया, दिल उसके हवाले कर दिया। आज एक और बरीक बात करता जाऊं, शायद जिंदगी में कभी आपने सुनी हो, पॉसिबल, मगर ना 99% लोग तो शायद पहली दफा सुनेंगे। ये जो अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना, वक़ल्बी लिर्रहमान,
کہ اللہ نے مجھ سے دل مانگا, میں نے دل رب کے حوالے کر دیا. پتا ہے فلسفے کا, قربانی کا فلسفہ, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے پیارے چہیتے لاڈلے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری کیوں چلوائی؟ بند کر دے عمران خان نہ ہوگا. ہاٹ لائن پہ بھی کچھ فون آتے ہیں نا رات کو 12 بجے کے بعد. پوری توجہ رہے, توجہ ہے ان کی کیا دو سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب نے مجھ سے دل مانگا, میں نے رب کے حوالے کر دیا. یہی فلسفہ قربانی ہے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں وہ مست مگن تھے. اللہ کی حمد و ثنا, تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح میں وہ مست مگن تھے. سامنے سے جناب اسماعیل علیہ السلام گزرے. سبحان اللہ. سامنے سے جناب اسماعیل گزرے. اور کون اسماعیل؟ جو نبی کا بیٹا, خود نبی, سید الانبیاء کا دادا. حسن و جمال کا عالم کیا, خوبصورت بیٹا جو 90 سال کی دعاؤں کے بعد ملا. کتنا پیار ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام کی عبادت میں بیٹھے, سامنے سے جناب اسماعیل گزرے, نظر ان کی طرف جھپکی اور دل میں ان کی طرف پیار بڑھنے لگا, محبت بڑھنے لگی, کشش ہونے لگی, اٹریکشن ہونے لگی. اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں آیا, اتنا بھی کہ خلیل یار میرا دل تو نے مجھے دیا اور تیرے دل میں تیرے اس معصوم بیٹے کی محبت کیوں جاگ پڑی. اب چھری اٹھاؤ, میرے نام پہ اس کو ہاتھوں سے ذبح کر. صرف اتنی سی بات. آگے بھی ابراہیم تھا. یہ نہیں کہا اللہ 90 سال منگریاں ولادی تھی ولادی تھی. صرف خواب دیکھا, آرڈر بھی نہیں ہوا, جبریل بھی نہیں آیا, جھلا خواب. صبح اٹھ کے بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا کر. ابراہیم نے جا کے چھری چلا. موضوع سخن پہ آتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا خلیل تب بنا کہ اللہ مجھ سے جو مانگتا گیا میں آنکھیں بند کر کے, بولو آنکھیں بند کر کے دیتا گیا. اللہ نے جان مانگی, میں نے چیخے میں پیش کر دی. اس نے اولاد مانگی, میں نے چھری چلا دی. اس نے مال مانگا, اس کے نام پہ لٹا دیا. اس نے دل مانگا, اس کے حوالے کر دیا. جب سب کچھ لٹا چکا تو پھر رب نے مجھے اپنا خلیل, اپنا یار بنا لیا. آؤ ادھر ابو بکر سے پوچھتے ہیں جس کے لیے پیغمبر نے کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں رب کے بغیر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر اس لائق تھا کہ میں اس کو اپنا خلیل بنا لیتا. اب آؤ ابو بکر سے پوچھتے ہیں, ابو بکر تجھے کیسے صدیق کی اور خلیل کی تمثیل ملی؟ تو ابو بکر بھی زبان حال سے کہتے ہیں اللہ ابراہیم سے جو مانگتا گیا وہ آنکھیں بند کر کے دیتا گیا. محمد مجھ سے جو مانگتا گیا میں بھی آنکھیں بند کر کے دیتا گیا. جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی وہی سیم ٹو سیم قربانی جناب صدیق اکبر نے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی دی وطن چھوڑ کے ہجرت کرنے کی. ابراہیم نے وطن چھوڑا, بابل سے نکل کر مکے آئے. ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے وہی امتحان ابو بکر نے بھی دیا. مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی. ابراہیم نے جب ہجرت کی بیوی بچے ساتھ, ابو بکر نے جب ہجرت کی بیوی بچے نہیں محمد ساتھ. ابراہیم نے جب ہجرت کی بابل سے مکے آئے, آ کے اللہ کا گھر بنایا بیت اللہ. ابو بکر نے جب ہجرت کی مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تو بھی اللہ کا گھر بنایا مسجد نبوی. اب ابراہیم نے اولاد پیش کی چھری کے نیچے, ابو بکر نے طیبہ کائنات پیش کی پیغمبر کے قدموں میں. جناب ابراہیم نے جان پیش کی آگ میں, نار میں,
जिसके लिए कुरान ने या नारो कूनी बर्दम व सलामा कहा था। इब्राहिम ने जान दी नमरूद की नार में, अबू बकर ने जान हथेली रखी हिजरत की गार में। नार में आग थी, गार में नाग था। वहां भी दुश्मन, वहां भी दुश्मन, वहां भी रब ने बचाया, यहाँ भी रब ने बचाया। उस नार का जिक्र भी कुरान में, इस गार का जिक्र भी कुरान में। उस नार के बाहर भी तौहीद का दुश्मन नमरूद था, इस गार के बाहर भी तौहीद का दुश्मन अबू जहल था। हाँ, उस गार को, उस नार को अल्लाह ने या नारो कूनी बर्दम व सलामा कहकर ठंडा किया, और इस गार में अल्लाह ने ला तहज़न इन्नल्लाह माना कहकर ठंडा किया। अब इब्राहिम ने अपना माल पेश किया अल्लाह के नाम पर। अबू बकर की हिस्ट्री पढ़ो, अबू बकर ने भी अपना सारा तन मन धन जो कुछ था सारा का सारा नबी के कदमों पर लुटा दिया। लुटाया या नहीं? ऐसा मौका भी आया कि अबू बकर घर की दीवारों पे हाथ फेर रहा है कि कोई सुई धागा न बच जाए, वो भी दे दूं ताकि किसी मुजाहिद के कपड़े सिल जाए। और ऐसा वक्त भी आया कि हुजूर ने चंदा मांगा, अबू बकर के पास देने को कुछ नहीं। अबू बकर ने कपड़े उतारे, टाट उठाया जमीन से, और वो टाट चादर बनाई, दो चादरें इहराम की तरह, एक नीचे एक ऊपर, टाट पहना, कपड़े जाकर बाजार में बेचे, जो पैसे मिले नबी के कदमों में रखे। वो सिद्दीक जिसने इब्राहिम की तरह अपना सब कुछ लुटा दिया। आओ फिर करोड़ लाली से मारो, दोनों का इनाम भी देखो। जैसे इम्तिहान सेम टू सेम था, वैसे इनाम सेम टू सेम था। जब इब्राहिम हर इम्तिहान में पास हो गया तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया? इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम को इमामत अता कर दी। और जब सिद्दीक हर कुर्बानी दे चुका, हर इम्तिहान में पास हो चुका, तो सिद्दीक को भी नबी ने इनाम यही दिया। मुरी अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, उसको भी इनाम में इमामत मिली, इसको भी इनाम में इमामत मिली। तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। नारे तकबीर। आखिरी एक पैरा दे के बात वाइंड अप करने चला हूं। मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी, हिस्सा एक छोटा सा, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, उसकी मैंने मुख्तसर आपको झलक दी। दूसरी मैंने आयत पढ़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। अब ये जो माअहू है ना, उलमा मुफस्सिरीन मुहक्किकीन मुदक्किकीन मुअल्लिफीन मुदर्रिसीन मुहक्किकीन जानते हैं कि इस माअहू का मिस्ताक के अव्वल जनाब सिद्दीक अकबर है। सबके जनाब सिद्दीक सारे बोलो जनाब सिद्दीक अकबर। अब आओ मैं अपने अंदाज में इसका तर्जुमा करूं कि कायनात के रब ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरा रसूल, वल्लज़ीना माअहू, और जो इसके साथ है। साथियों में जब मैं पैगंबर का नक्शे पा देखता हूँ तो मुझे नबी के नक्शे कदम पर सबसे आगे आगे चलता हुआ अबू बकर नजर आता है। क्यों कि पैगंबर ने जब ऐलान नबूवत किया, सबसे पहले अबू बकर ने नक्शे कदम पे रखा, और सबसे पहले ऐलान सहाबियत किया। पैगंबर बैतुल्लाह में तबलीग के लिए गए, अबू बकर बैतुल्लाह में पहुंचा, नबी बदर में, अबू बकर बदर में, नबी खैबर में, अबू बकर खैबर में, नबी खंदक में, अबू बकर खंदक में, नबी मौका में, अबू बकर मौका में, नबी ज़ातुर रिका में, अबू बकर ज़ातुर रिका में, नबी शेब अबी तालिब में, अबू बकर शेब अबी तालिब में। फिर पैगंबर की वफात के बाद हुजूर जिस मुसल्ले पे थे, अबू बकर उसी मुसल्ले पर, हुजूर जिस मिंबर पे थे, अबू बकर उसी मिंबर पर। हुजूर की वफात का मंजर देखो, हुजूर को वफात से 2 साल पहले ज़हर दिया गया, अबू बकर को भी 2 साल पहले ज़हर दिया गया। हुजूर की भी वफात से 15 दिन पहले हुजूर को बुखार आया, अबू बकर को भी वफात से 15 दिन पहले बुखार आया। हुजूर ने भी वफात वाले दिन
सर पे पट्टी बांधी, अबू बकर ने भी वफात वाले दिन सर पे पट्टी बांधी, हुजूर ने भी वफात वाले दिन मौत से पहले हुस्ल किया, अबू बकर ने भी वफात वाले दिन मौत से पहले हुस्ल किया, हुजूर ने भी वफात वाले दिन मिसवाक किया, अबू बकर ने भी मिसवाक किया, हुजूर का मिसवाक आयशा ने चबाया, अबू बकर का मिसवाक आयशा ने चबाया, हुजूर की जब वफात हुई सर आयशा की गोद में, अबू बकर की जब वफात हुई तो भी सर आयशा की गोद में। इसको कुरान ने कहा वल्लज़ी नमाज़, जो हमेशा हर वक्त हर आन हर पल नबी के नक्शे कदम पे है और साथ साथ चल रहा है। जहां जहां से मुस्तफा गुजरे वहीं वहीं से सिद्दीक़ अकबर गुजरते हैं। किसी पे बस नहीं, हुजूर की वफात के बाद जिस रोजे में हुजूर को दफन किया गया, अबू बकर को भी उसी रोजे में दफन किया गया। हुजूर की वफात के बाद हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जनाजा रात को उठा। सिद्दीक की वफात के बाद सिद्दीक की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका का जनाजा भी रात को उठा। हुजूर की वफात के बाद हुजूर के नवासे हजरत हुसैन को शहीद किया गया, तो अबू बकर की वफात के बाद अबू बकर के नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद किया गया और हजरत हुसैन का भी सर काटा गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर का भी सर काटा गया, हुसैन भी मसले खिलाफत पे शहीद हुए, इब्न जुबैर भी मसले खिलाफत पे शहीद हुए। इसी को कुरान ने कहा वल्लज़ीना माहू, मेरे नबी का सबसे सच्चा पक्का धक्का साथी देखना चाहते हो तो फिर सिद्दीक़ अकबर सच्चे हैं। इसी को कुरान ने कहा वल्लज़ीना माहू, वल्लज़ीना माहू, वो सिद्दीक, वो अबू बकर जिसपे आज कुछ तबर्राई, धुएंदार मलंग, अफयूनी, चरसी, वल्द ना मालूम या सनाफ आल माल सिद्दीक पे बकते हैं। तबर्रे का बाजार गर्म किया जाता है, कभी टीवी पे, कभी मजलिस में, कभी महफिल में, कभी सोशल मीडिया पर। सिद्दीक वो सूरज है जिसकी तरफ लाखों नहीं करोड़ों मलंग भी थूक जाए तो थूक उनके मुंह में आएगा, सिद्दीक चमकता रहेगा। कह दो इंशाअल्लाह। और आज एक बात और मैंने करनी थी, वक्त हालात और मौसम को देखकर वाइंड अप कर रहा हूँ कि सिद्दीक खत्म नबूवत का सबसे पहला मुजाहिद था। सबसे पहला मुजाहिद खत्म नबूवत का कौन? सिद्दीक अकबर। क्योंकि सबसे पहले जिहाद का ऐलान खत्म नबूवत के मौजू पर सिद्दीक अकबर ने किया था या नहीं? और कितने सहाबा शहीद हुए उस वक्त। पता चला ना कि खत्म नबूवत इतना अहम इशू तो है कि हुजूर की पूरी जिंदगी में जितनी जिहाद हुए उन सब में मिलाकर भी इतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितना एक उस जंग में हुए जो जंग सिद्दीक अकबर ने खत्म नबूवत के मौजू पे मुसलमान कज़्ज़ाब से। सबसे ज्यादा कुर्बानी नबी के सहाबा ने जो दी वो खत्म नबूवत के मसले पर दी। तो मैं आज और सिद्दीक अकबर की मुजाहिद खत्म नबूवत की अज़मत को सलाम करते हुए करोड़ वालों तुम्हें भी जगाना चाहता हूँ, तुम्हें भी मुजाहिद खत्म नबूवत बनाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन ने एक करारदाद पास की और पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों नामूस रिसालत के कानून में तब्दीली करो और जो नबी की तौहीन करे उसकी सजाए मौत खत्म करो। तो मैं सलामे अकीदत करना चाहूंगा आलमी मजलिस मुअस्सिस खत्म नबूवत वालों को और कायदे जमीयत मुफक्किर इस्लाम खतरे हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को कि जिसने
नारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। आज अगर आपको कायदीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत या कायदीन जमीयत खत्म नबूवत के इस कानून पे पहरेदारी के लिए बुलाएं तो फिर सर पे कफन बांध के निकलोगे? ऐसे नहीं, खड़े होकर दोनों हाथ खड़े कर नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। पाकिस्तानी इदारे भी इन जज्बात को नोट करें, हाथ खड़ा रखो, इन जज्बात को नोट करें कि खबरदार अपने आकाओं अमेरिका, यूरोप, रशिया, इसराइल को खुश करने के लिए अगर किसी बदमाश ने तौहीन रिसालत के कानून को छेड़ा तो हम तन मन धन की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन नबूवत और खत्म नबूवत की इज्जत पे कंप्रोमाइज, सारे बोलो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो करो यानी सब के जवानों, बूढ़ों, बच्चों, अगर तुम नबी की खत्म नबूवत की पहरेदारी का वादा करते हो, इंशाअल्लाह अज़ीज तुम्हारे ये खड़े हाथ फरिश्ते देखकर नामे आमाल में लिख रहे हैं। मुझे रब पे भरोसा है कि अगर तुम खत्म नबूवत के पहरेदार बनोगे, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें नबी की शफाअत भी देगा। कह दो इंशाअल्लाह। तुम अपने इस वादे पे पक्के रहे तो मैं आखिर में एक शेर अरबाब इक़्तिदार से लेकर यूरोपीय यूनियन तक भेजा करता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। ये मौजू जो मैंने अभी आपके सामने छेड़ा, मगर दरमियान में मुझे छोड़ना पड़ा। अगर नौजवान यंग ब्लड न्यू जनरेशन देखना चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल है मौलाना याह्या अब्बासी ऑफिशियल के नाम से। उस चैनल पे जाकर आप बयानात भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका आना अपने दरबार में कबूल हो।